के बाद जैसा कि मैंने निवेदन किया कि आज हमारे पास श्रीलंका से आई हुई कलाकारों का दल है जो भगवान राम के चरित्र का मंचन करेगा। इसके बाद नेपाल जनकपुर से आए हुए कलाकारों का दल है जो इस मंच पर प्रभु श्री राम के जीवन के प्रसंगों को मंचित करेंगे। साथ ही रूस से आए हुए कलाकार भी हैं। आज पहली प्रस्तुति के रूप में हमने श्रीलंका के कलाकारों को इस मंच पर आमंत्रित किया है। इन जयकारों की गूंज के मध्य त्रेता में जिस तरह प्रभु श्री राम का आगमन हुआ था और उनका राज्याभिषेक किया गया था, भगवान का राज्याभिषेक आज इस मंच पर एक बार पुनः हुआ। और उनके राज्याभिषेक के समय श्री अवधपुरी में दूर दूर देशों के नरेश और राजा आए थे और लंका के राजा विभीषण भी राज तिलक में आए थे राज्याभिषेक के समय। विभीषण जी महाराज जब अयोध्या आए थे राज्याभिषेक के समय, तो यहां जिस स्थल पर रुके थे विभीषण कुंड नाम का वो जगह आज भी है। विभीषण जी के पुत्र मत गजेंद्र के नाम से अयोध्या के कोतवाल होकर आज भी यहां विराजित होते हैं। तो श्रीलंका से आए विभीषण जी अगर राज्याभिषेक के साथ आए थे, तो आज श्रीलंका के ही कलाकार एक बार पुनः भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के समय यहां आए हैं और उनकी लीलाओं का मंचन करेंगे। मैं भाषा की बाध्यता नहीं है, मैं आरंभ बता देता हूं कि श्रीलंका के कलाकार आरंभ करेंगे। सबसे पहले रावण का वो दरबार है जहां पर वो नृत्य का आनंद ले रहे हैं और उसके पश्चात रावण जब यहां अपने दरबार में आनंदित होता है, उधर जंगल में लक्ष्मण जी महाराज शूर्पणखा की नाक काट रहे होंगे। अनंतर उसी से बाद कथानक आरंभ होता है। मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजा दीजिए। जय जय श्री राम। श्रीलंका के कलाकार आ रहे हैं अपनी प्रस्तुति लेकर। Ayubowan. Greetings from Sri Lanka, where the epitome of Ramayana taken place. We are indeed glad and delightful that there is a resurgence of time and epic which has been handed over from generation to generation, which is a dynamic and living, with the legacies and legends of that epic, especially Rama, Ravana, Hanuman, Sita, etc., has molded civilization, societies, and individuals to be more virtuous and law-abiding, peace-loving, compassionate, respecting one another. This is the very essence of Ramayana. Even today, we look up to Ramayana in search of these morals. It is a thread, a golden thread, I should say, which binds Sri Lanka and India together. A bridge that was created between the two countries and also bringing hearts and minds together of people of two countries. And at this juncture, we are very thankful to Encyclopedia of the Ramayana, especially Ayodhya Research Institute, for hosting drama, dance, performance depicting Ramayana. And we are also grateful to them that they have invited a group of performers from Sri Lanka. We are indeed happy to take part of this event, not because we have been invited, but we have once upon a time, Sri Lanka was the climax setting for the Ramayana. Let me extend our well wishes to the organizers, especially Dr. Bala, who has been a friend of ours and who has been a yeoman, who has done yeoman service to establishing and revisit Rama Ravana story, for his endless efforts on this aspect. And at this juncture, let me invite, as the Minister of Buddha Sasana, Religious and Cultural Affairs, all of you to Sri Lanka
to pay visits to where the certain events took place. We would like people remember this, not only through scriptures, but being a part and parcel of visiting these places and admiring them while appreciating. So once again, let me invite all of you all to visit Sri Lanka. Thank you very much. Ayubowan. Jimuta Burundio, Jimuta, hey Jimuta Surundio, Jimuta, hey Jimuta Burundio, Jimuta, hey Jimuta Surundio, Jimuta, hey Jimuta Burundio, Jimuta, hey Jimuta Surundio, Amor behamin hele ahla mahata bulatenu. Ekat kolegi abapang adat ye dete vera jimuta jadi happy biunga kule pai dedo jimuta surundio jimuta hey jimuta burundio jimuta surundio अंबरी मोरिय नर्तनी गगनी किलु अग्नि पस सुसैदी समग रंगने पंकर पारे कपुहेनी तेतंगु गायनी Barga Chakku Mangalam Randamala Ile Devura Parana Salu
प्रत्यक्ष दुर्वसः पंसा राज रोज रज राजपुत्र रज कुंती मलि पुत्रा रोद्र पुष्परन काम माते सित रोहन ये राजिदा राजपुत्र
उग्र शिव रौद्र बृंदी सभी मर्मतगा करना बेलुबेन सतबाधक यानन सुनगनये वसवा राक्षसेय रुण लोहित बंधित पुरपसये इंद्रा शाल्य चाकल्य महारथीय बस शिव महिमा पतिका माल्य माली चक उप अंगरथ सिंहलये असुरा
हेलो। श्रीलंका से आए हमारे इन कलाकारों ने जैसा कि निवेदन किया था हमने कि मात्र 20 मिनट में इन्होंने अपनी हमारे श्रीलंका के कलाकारों ने 20 मिनट में अपनी तरह से प्रभु श्री राम के आदर्शों को जिस तरह आत्मसात किया है यहाँ मंच पे प्रदर्शित किया है। और मुझे आदेश हुआ है कि ये चूंकि श्रीलंका के हैं, इनके जो डायरेक्टर हैं, जो टीम लीडर हैं डॉक्टर बाला, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर बाला कृपया मंच पे आएं। इनके निर्देशन में इन्होंने श्रीलंका में भी और आगे भी ये बहुत काम कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चर्चाएं कर रहे थे उसके पहले इन्होंने। और मैं एक चीज निवेदन कर दूं कि ये जो सारे कलाकार हैं ये संस्कृति विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने राम जी के चरित्र पर पूरा, ये सारे के सारे ऑल आर द एम्प्लॉयड, और इन्होंने वो तैयारी की है, तो इनके लिए तालियां बजती हैं। और जिस देश की संस्कृति में राम हमारे आ जाएं उस देश का कल्याण होने से कौन रोक सकता है। मैं बहुत ही आदर पूर्वक थैंक यू, मैं चाहूंगा तालियों से विदा कीजिए श्रीलंका के कलाकारों को, क्योंकि जनकपुर की टीम भी तैयार है। मुझे इशारा मिला है, अनुमति मिली है, आदेश मिला है कि मैं तालियों की इस गूंज में जब आप विदा कर रहे हैं श्रीलंका की टीम को मैं आमंत्रित कर दूं जनकपुर के आए हुए अपने उन कलाकारों को जो बहुत ही उत्सुकता और व्यग्रता के साथ इस मंच पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए आतुर थे। उनका कहना था कि हमारे पाहुन राम जी की धरती पर हमें अपनी प्रस्तुति देने का अवसर मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। एक बात और, बहुत सारे लोग आप जानते होंगे कि जनकपुर में जहां पर भगवती जानकी का जन्म हुआ था वहां पे रामलीला सिर्फ उसी तक दिखाते हैं, विवाह प्रसंग तक। प्रभु श्री राम मां जानकी के साथ विवाह करके कोहबर तक जाते हैं और कोहबर के आगे का प्रसंग नेपाल में या कहिए जनकपुर की रामलीला में दिखाया नहीं जाता, क्योंकि इनका मानना है कि भगवती के वो सुख के दिन थे और ये अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते, उसके दुख का मंचन नहीं कर सकते। तो तालियां बजा दीजिए इस भाव के लिए। जनकपुर के साथी कलाकार आ रहे हैं इस मंच पर जनकपुर की रामलीला लेकर। धनुष भंग के प्रसंग से आरंभ होगी इनकी प्रस्तुति और कोहबर पर जाकर समाप्त होगी। और मैं आप सबको अवगत करा दूं कि इसके तत्काल बाद 20 से 22 मिनट की प्रस्तुति है। रूस के कलाकार भी कर रहे हैं प्रतीक्षा इस मंच के नेपथ्य में, हम उन्हें भी आमंत्रित करेंगे इस प्रस्तुति के बाद। हम एकटा हठप्रण लेल धनुष यज्ञक आयोजन भेल। जे वीर ई धनुष के तोड़ता वह सियाजुक वरण करता।
जनक जी के प्रण बेकार चल गए, जनक जी के प्रण बेकार चल गए। रघुरैया धनुषिया तोड़ दियो रे, रघुरैया धनुषिया तोड़ दियो रे, रघुरैया धनुषिया। आनन चानन नीपु कौशल्या, आनन चानन नीपु कौशल्या, गजमोती चौका गजमोती चौका पुरा दियो ने, रघुरैया धनुषिया तोड़ दियो रे, रघुरैया धनुषिया तोड़ दियो रे, रघुरैया धनुषिया। अलस कलस लय पुरहर राखल, अलस कलस लय पुरहर राखल, मानिक दीप मानिक दीप जरा दियो ने, रघुरैया धनुषिया तोड़ दियो रे, रघुरैया धनुषिया तोड़ दियो रे, रघुरैया धनुषिया। रघुबर जी हमरा ने चाहियो पाहुन, हमरा ने चाहियो पाहुन, ई धनुष बाण यो हमरा ने चाहियो पाहुन, ई धनुष बाण यो हमरा त चाहियो पाहुन, हमरा त चाहियो पाहुन, मंद मुस्कान यो हमरा त चाहियो पाहुन, मंद मुस्कान यो हमरा त चाहियो पाहुन। जे जे कहै छी मानू, मिथिला के पीठ जानू, जे जे कहै छी, जे जे कहै छी, जे जे कहै छी मानू, मिथिला के पीठ जानू, सासुर में लीप कराहू, एना चुइन छाती तानू, सासुर में लीप करा
राम रान चाहियो पावन। नगरिया सा एलई बारियतिया है सोहावन लागे। बधा नगरिया सा एलई बारियतिया है सोहावन लागे। जनक नगरिया भेलई सो हे सोहावन लागे। जनक नगरिया भेलई सोर हे सोहावन लागे। परिछन चलियो सखी सुंदर जमैया हे सोहावन लागे। परिछन चलियो सखी सुंदर जमैया हे सोहावन लागे। सोना के डाला लियो साथ 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 हे सोहावन लागे। रघुबर जी देत भंवरिया है। रघुबर जी देत भंवरिया है। संग सोहज दुलरी नगरिया है। संग सोहज दुलरी नगरिया है। रघुबर जी देत भंवरिया है। रघुबर जी देत भंवरिया है। रघुबर जी देत। सब पर सोहे मनीन मोर मोरिया। सिर पर सोहे सिर पर सोहे मनीन मोर मोरिया। सामने के छवि चित चोरिया है। आहे सामने के छवि चित चोरिया है। रघुबर जी देत भंवरिया है। रघुबर जी देत भंवरिया है। रघुबर जी देत।
देहर के छकाई पहिने आवत कभियो यो रघुवंशी दुल्हा। देहर के छकाई पहिने आवत कभियो यो रघुवंशी दुल्हा। तब जइयो को यो रघुवंशी दुल्हा। तब जइयो को यो रघुवंशी दुल्हा। बापक कमाई दुल्हा एक कभियो यो रघुवंशी दुल्हा। बापक कमाई दुल्हा कभियो यो रघुवंशी दुल्हा। तब जइयो को 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 प्रिय पाहुनियो प्रिय पाहुनियो अहिधम विबाहु को बरमात। प्रिय पाहुनियो अहिधम विबाहु को बरमात।
पर बियालो पाहुन आमाक गठिया प्रिय पाहुनियो अहि थम्बी बाहु को बरबाद प्रिय पाहुनियो अहि थम्बी बाहु को बरबाद सखी कोहबर में बर अचरज देख लो, सखी कोहबर में बर अचरज देख लो। सखी की देख लो आई अंधरिया ई दरिया मिलन देख लो, आई अंधरिया ई दरिया मिलन देख लो। हमर की सोरी के रूप जुटी चमके, हमर की सोरी के रूप जुटी चमके। और की देख लो अच्छा सुनबै हाँ बिनु बादल सरिस बदन देख लो, मन हरिया के करिया बदन देख लो। आई अनरिया ई दरिया मिलन देख लो, आई अनरिया ई दरिया मिलन देख लो। हमर लली जी के देख बिजली जे चमके, हमर लली जी के देख बिजली जे चमके। और की देख लो अच्छा सुनबै हाँ अब बिनु बादल सरिस सामदन देख लो, बिनु बादल सरिस सामदन देख लो। आई अनरिया ई दरिया मिलन देख लो, आई अनरिया ई दरिया मिलन देख लो, आई अनरिया ई दरिया मिलन देख लो। आई अनरिया ई दुनिया मिलन देख लो एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोने धाम। एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोने धाम। एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोने धाम, दोसर पायब कोने धाम। दुल्हा दुल्हन वो दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोने धाम।
सुकुमार सिया जनक दुलार बहन सिया सुकुमार सिया जनक दुलार सिया जनक दुलार राम जी के ससुराल जनकपुर में राम जी के ससुराल जनकपुर में एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोने धाम एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोने धाम किया करबै ककरो आस जखन मिथिला हमर बास किया करबै ककरो आस जखन मिथिला हमर बास किया करबै ककरो आस जखन मिथिला हमर बात जखन मिथिला हमर बात हमर बहिन छथिन खास जनकपुर में हमर बहिन छथिन खास जनकपुर में एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोने धाम एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोने धाम एहन सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोने धाम दोसर पायब कोने धाम दुल्हा दुल्हन दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में 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 जय सिया राम। हम मिथिलावासी इससे ज्यादा कथा नहीं दिखाते। हम लोग का मान्यता है जो मिथिला से सिया बहन जब अवध आई और प्रभु श्री राम के पास अवध में, तो उनका जो तकलीफ दुख है न हम मिथिलावासी देखना चाहते हैं न दिखाना चाहते हैं। हम लोग का मान्यता है कि बहन सिया और प्रभु श्री राम पाहुन श्री राम वो हमारे मिथिला में ही विराजमान है। वो अवध में एक दूसरे रूप से आए, मूल रूप मिथिला में ही है। यही मान्यता सोच के हम लोग हमेशा खुश रहते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार जनकपुर की इस टीम का। आपकी तालियों के साथ जनकपुर की टीम विदा लेती है इस मंच से। हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्रभु की लीला जहां जहां जाती है हर आदमी उसे अपने देश काल भाव परिस्थिति के अनुसार आत्मसात कर लेता है और अपनी तरह से ही उसे प्रस्तुत करता है। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। जनकपुर के वासियों को कोहबर तक की कथा अत्यंत प्रिय लगती है। प्रभु श्री राम की आगे की लीलाओं को वो नहीं देख पाते, इसलिए वहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार तालियां बजा के इनको विदा कीजिए, क्योंकि अब हम आपको रूस ले चल रहे हैं, यानी कि रूस के कलाकारों को आमंत्रित कर रहे हैं। वो कोहबर से आगे की कथा को भी उन्होंने किस तरह से आत्मसात किया है, क्योंकि प्रभु श्री राम अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। वो आराध्य इष्ट धर्म जाति भाषा पंथ के नहीं है, वो एक आदर्श है, वो एक आचरण है, वो एक जीवन शैली है और उसे सबने अपने ऊपर मिलाया है, अपने ऊपर आचरित किया है। और इसीलिए प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। तो आइए ब्रह्मांड में से सोवियत रूस के कलाकारों को आमंत्रित करते हैं जो आज के इस प्रसंग को यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। छोटी सी तालियां बजा दीजिए हमारे रूस के मेहमानों के लिए।
ट्रैक चालू कर दीजिए। रूस में रामलीला का इतिहास सन 1960 से प्रारंभ होता है। उस वक्त भारत के तत्कालीन राजदूत ने रामलीला के मंचन में व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखाते हुए भरपूर सहयोग किया और उसके बाद से ही रामलीला सोवियत संघ में बहुत ही प्रसिद्ध हुई। इस रामलीला को जीवंत करने और रूस में जन जन तक पहुंचाने वाले रूसी कलाकार पद्मश्री गेनादी पेचनिकोव का जन्म 8 सितंबर 1926 को मॉस्को में हुआ था। श्री गेनादी सोवियत संघ के बहुत ही प्रतिभावान कलाकार के साथ सामाजिक कार्यकर्ता और अपने समय के बहुत ही विवेकशील दार्शनिक रहे हैं। श्री गेनादी के अथक परिश्रम और अभूतपूर्व अभिनय से ही रूस में रामलीला का मंचन वास्तविक रूप में प्रारंभ हुआ। उन्होंने सारी जिंदगी राम के चरित्र को समर्पित करते हुए एयर शो थिएटर के माध्यम से निर्देशक एवं प्रोफेसर की भूमिका निभाते हुए बिताई। उल्लेखनीय है कि जब मंच पर गेनादी जी श्री राम की भूमिका में उतरते थे, रूसी और प्रवासी लोग चाहे उनकी भाषा और अभिनय को न समझ पाते हों, लेकिन उनके दिलों में एक भाव उतरता था जिसे हम राम कहते हैं। उनकी अभिनय कला ही उनकी साधना रही है। गेनादी जी शरीर से भले ही रूसी थे, लेकिन संस्कारों और मूल्य से वे भारतीय ही थे और सदा भारतीय ही बने रहे। सन 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने अपने कर कमलों से गेनादी जी को पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया। इसके अतिरिक्त बच्चों में राम आदर्श और संस्कार कोशिश करने के प्रयासों को सरकार ने इन्हें बाल मित्र सम्मान देकर पुरस्कृत किया। गेनादी जी को भारत और रूस की सरजमी पर जो पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, उनसे उनका कद आज तक गगनचुंबी बना हुआ है। उनकी बेटी ताचियाना जी भावुक शब्दों में कहती हैं कि मेरे पिताजी भारत को बहुत प्रेम करते थे। उनके हृदय में भारतीय संस्कृति एवं भारतीय भूमि के लिए विशेष सम्मान था। रूसी भारतीय मैत्री संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर सिंह उन्हें स्मरण करते हुए कहते हैं कि गेनादी जी महामानव थे और आजीवन राम में बने रहे। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी का कहना है कि गेनादी पेचनिकोव जी की रामलीला का पुनः मंचन प्रारंभ होने पर वो हृदय से उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक महोदय, भारतीय राजदूतावास के माननीय राजदूत महोदय और जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र मॉस्को का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बताते चले कि रूसी भारतीय मैत्री संघ दिशा मॉस्को संस्था भारत और रूस के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए समय समय पर अनेक कार्यक्रम आयोजित करती है। इसी परंपरा में पद्मश्री गेनादी पेचनिकोव मेमोरियल दिशा रामलीला का प्रारंभ अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। इस रामलीला के निर्माता निर्देशक डॉक्टर रामेश्वर सिंह हैं। इस रामलीला के मंचन में उप निर्देशिका श्रीमती रति कोसिनोवा हैं और साथ ही सह निर्देशिका श्रीमती नाजेदा सिंह अहम भूमिका निभा रही हैं। उल्लेखनीय है कि इस रामलीला के सभी पात्र रूसी हैं। रामलीला का प्रारंभ सीता स्वयंवर से होता है, जहां राम शिव धनुष का भंजन करके सीता का वरण करते हैं। अयोध्या में भव्य स्वागत होता है। कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ से वचन मांगना, राम का वनवास जाना, सीता का हरण होना, हनुमान का मिलन, सीता की खोज में जाना, राम और रावण घनघोर युद्ध होना, राम सीता का पुनर्मिलन, राम का अयोध्या लौटना और रास तिलक इस रामलीला के प्रमुख आकर्षण है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह के निर्देशन में ये रामलीला एक भव्य सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मानी जा रही है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह मॉस्को के वरिष्ठ संपादक, दिशा संस्था के संस्थापक और प्रखर पत्रकार हैं, जिन्हें 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रवासी भारतीय रत्न महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा दिया गया था। यही रामलीला सन 2018 में अयोध्या शोध संस्थान के तत्वाधान में आयोजित दीप उत्सव में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित की गई। महाकुंभ के
कार्यक्रम में इस रामलीला को एक बार फिर अपनी प्रस्तुति देने का मौका मिला और इस कार्यक्रम में रूस के राम के नाम से जाने वाले पद्मश्री गेनादी पेचनिकोव की बेटी ताचियाना जी को भी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही रूसी भारतीय मैत्री संघ दिशा संस्था द्वारा भारत में वर्ष 2019 में प्रयागराज में रूसी कलाकारों के साथ रामलीला का मंचन और वर्ष 2022 में अयोध्या में पुनः दीप उत्सव कार्यक्रम में अपनी अभूतपूर्व प्रस्तुति दे चुका है और साथ ही 2023 में होने वाली अयोध्या की रामलीला में भी अपने अभिनय से भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए कृत संकल्पित है। Я всегда отмечаю каждый год Рамнавми, день рождения Рамы. Это у нас Сангам. Вот это у меня орден Падма-Шри. दीपावली है, आज हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया। बहुत शुभकामना। Мое самое большое богатство. Сита, моя возлюбленная дочь, дарованная мне матерью землей. Если кто-либо из могучих воинов согнет шип Хануш и натянет на него тетиву, то прекрасная Сита станет его супругой. Могучие воины, начинайте своямбр. Повелитель всех ракшасов, Сита будет моей. Я любимец Шивы, и я стану победителем. Хар-хар Махадев! Хар-хар Махадев! Это нечестное состязание. Вы еще пожалеете. Сита все равно будет моей. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Отец, кто это? Это герой Рама, сын Дашаратха Махараджа Айодхя. Великое чудо свершилось сегодня. Прекрасная Сита нашла себе достойного свами. О, великий и могучий Рам,
обязанности своей в исполнении жизненного долга. Сада Сухирако. До меня дошла радостная весть о том, что Рама совершил подвиг, и Сита стала его супругой. Я хочу, чтобы Рама еще при моей жизни стал Раджа Айодхья. О, Рама, прими звание государя, да будет правление твое благим для народа. Я вижу, Каушалья и Сумитра рады слышать эту новость. Но чем опечалены вы, Кайкеи? Помните ли вы, о Махарадж, что в дни войны богов и демонов я спасла вам жизнь? Помню. Помните ли вы, о Махарадж, что вы обещали исполнить 2 любых моих желаний? Помню. И ныне я хочу получить обещанные дары. Я хочу, чтобы на трон взошел мой сын Бхарата. Но ведь Рама законный наследник. А Рама должен уйти в джунгли Дандака сроком на 14 лет. Нет, Кайкеи! Я не переживу изгнание Рамы. И если вы не выполните мою просьбу, я выпью яд. Жалься надо мной, Кайкеи. Отец, я с радостью исполню адеш матери Кайкеи. Сита, я ухожу сегодня. Ты же оставайся с миром и живи счастливо под властью Махараджа Бхарата. О, если ты обречен на изгнание, то с тобой мне суждена жизнь в джунглях. О, Рама, позволь мне сопутствовать тебе в Дандакаране. Лучше я умру, чем останусь здесь. Не разубеждай меня. Никогда не услышишь ты от меня ни единой жалобы. Я не вынесу разлуки с тобой. Разве смогу я жить без тебя 14 лет? Если ты решилась, я не могу оставить тебя. Следуй за мной и раздели мой ванвас. Если ты уходишь в джунгли, я пойду с тобой, брат. Без тебя не милы мне все блага небес. Да будет так, Лакшман. О, Махарадж, я ухожу в ванвас на 14 лет. Позволь Сити и Лакшману сопровождать меня. Не печалься и благослови нас. Мы уходим сегодня. Аширвадде. О, Рама, бремя царского долга мне не по плечу. Бхарата, ты достоин этого царства. Ты будешь править Айодхе справедливо и со славой. Я буду править, как наместник Рамы, и дождусь его возвращения. О, Рама! О, Лакшман!
Поглядите на этого чудесного Соник Хирона. Великий Рама, поймай его для меня. Лакшман, зорко стереги Ситу. Сита! Лакшман! Лакшман, вы слышали горестный крик моего супруга? Наверное, он попал в беду, ему нужна ваша помощь. Скорее же, помогите ему. О, Мата Сита, нет никого на свете, кто мог бы нанести поражение великому Раме. И вы не должны сомневаться в этом. Я не смею оставить вас одну. Позор вам! Я вижу, что несчастье брата приносит вам радость. Сита! Лакшман! Лакшман, без Рамы я ни минуты жить на земле не буду. Я не смею спорить с вами, Мата Сита. Ни в коем случае не выходите за эту черту. Я пойду на поиски Рамы, и да хранят вас боги. О, прекрасная, почти меня своим подаянием. Прошу вас, примите мои скромные дары. Подойди ближе. Я странствующий отшельник. Тебе нечего бояться. Глупая Сита! Ты будешь моей! Приветствую тебя, о Рама. Ты помог мне, когда коварный Бали лишил меня престола. Теперь мой черед помочь тебе. Ситу украл Рама. Он унес ее на своей Виман далеко на Лангу. Все обезьяны мира помогут вам, и мы вместе спасем Мату Ситу. Нам надо узнать, жива ли Сита и где Раван прячет ее. Ступай же, Хануман, и мы будем ждать тебя. Хануман, возьми это кольцо и передай его Сите. Она примет тебя как моего посланника. О, Сундари, почему ты боишься меня? Стань моей супругой, забудь Раму, и мы будем вместе счастливы. Оставь меня. Я жена великого Рамы, и я верна ему. Ах, глупая Сита! Если через 2 месяца она не станет моей супругой, я прикажу убить ее! Взять! О, Мата Сита, я посланник Рамы Хануман. Он жив-здоров и спрашивает о вашем благополучии. Взгляните, вот перстень с его именем. О, Хануман, скажите Раме, чтобы он приходил, пока не кончился год моего пребывания здесь, иначе он не застанет меня в живых. Скажите это Раме и передайте ему этот драгоценный камень. О, Мата Сита,
Едва Рама услышит весть о вас, он тут же явится сюда, чтобы спасти вас. Ступайте же, и да послужит ваша отвага и мудрость моему избавлению. Да будет так. О, Рама, я нашел матушку Ситу. О, Хануман, воистину вы величайший из обезьян. Пора готовиться к бою. Джей Шри Рам! Джей Шри Рам! Джей Шри Рам! О, Сита, все, что я совершил ради тебя и смыл оскорбление, нанесенное нашим врагом. О, лучший из обезьян, ты исполнил свой долг дружбы. Отправляйся с миром в свое царство. Хамари Джит, Сатьяки Джит, Хе Сугрию, Хе Хануман, Абдона Махархе. А нам же пора возвращаться домой, в Айодхя.
हमारे ये रूस से आए कलाकारों ने यहाँ पर भगवान श्री राम के चरित्र का मंचन किया। आनंद आपको आया होगा, इनको जरा बता दीजिए। अयोध्या अपने तरीके से, और इसी तालियों, अयोध्या की तालियों की ये गूंज सोवियत रूस तक ये जाएंगे तो इनके कानों में गूंजती रहेगी, ये मेरा विश्वास है। और मैं बहुत ही आदर के साथ प्रमुख सचिव संस्कृत महोदय से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय को और साथ में अन्य गणमान्य अतिथियों को मंच पर जी सोवियत रूस के कलाकार यहाँ पे हैं, तो मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे जो अन्य विशिष्ट गणमान्य अतिथिगण हैं उनके हाथों एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी नन्ही कलाकार को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद प्रदान होता है। बहुत ही सुंदर मनोरम माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी कलाकारों को एक प्रतीक के रूप में चिन्ह प्रदान करते हुए राम नाम का पटका उन्हें देते हुए, क्योंकि अयोध्या की ये स्मृतियां हमारे इस मंच पर इस समय सोवियत रूस से आए हमारे जो कलाकार हैं जिन्होंने मंचन किया यहाँ पर, मैं चाहूंगा जी ये अयोध्या है, आपकी तालियां गुंजायमान रहनी चाहिए क्योंकि ये कलाकार हैं जो दूर देश से आए हैं और हमारे आदर्श, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, जी ये अयोध्या है। हमारी इस मंडली के राजा दशरथ बने थे। ये अभूतपूर्व दृश्य है, भगवान श्री राम के जयकारों से, जय घोष से गुंजायमान हो रही अयोध्या के मध्य हमारे अंतर्राष्ट्रीय रामलीलाओं के जो कलाकार आए हैं उन्हें स्मृति चिन्ह प्रतीक के रूप में प्रदान किया जा रहा है। जय श्री राम। सोवियत रसिया के इन कलाकारों को हम इस मंत्र से विदा करते हैं और मैं इसी के साथ आमंत्रित करता हूं
श्रीलंका की टीम के कलाकारों को डॉक्टर बाला जो कि टीम लीडर हैं, उनसे निवेदन है कि वो श्रीलंका के कलाकारों को भी, जिन्होंने यहाँ बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, श्रीलंका से आए कलाकारों ने अपनी जो प्रस्तुतियां दी, आप सबने उनको देखी कि इन्होंने, जी आपकी तालियां इस बात का प्रमाण है कि हमारे इन कलाकारों ने जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि हमारे पास ये जो श्रीलंका के कलाकार हैं, आज कलाकार की तरह यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन जब बात आती है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र को चित्रित करने की, मंचन करने की, तो ये श्रीलंका के संस्कृति विभाग के सारे कर्मचारी और अधिकारी गण हैं। ये एक विशेष बात है कि वहाँ की संस्कृति में भी भगवान श्री राम इस तरह से घुल मिल गए हैं कि वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी भी उनके आदर्शों को पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। तो अयोध्या की धरती से उन्हें प्रोत्साहन आपकी तालियों के रूप में अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि जिस आस्था और भक्ति के साथ ये अपने कार्यक्रमों की यहां प्रस्तुति करते हैं, डॉक्टर हमारे इस मंच पर जनकपुर से आई हुई टीम भी है। मैं जनकपुर के टीम लीडर हमारे परमेश झा सर से कहूंगा कि वो अपनी अतिशीघ्र अपने कलाकारों को मंच पर लेकर आएं। जनकपुर के आए हमारे वो कलाकार जिन्होंने मैथिली भाषा में, यानी कि मिथिला की भाषा में, मिथिलांचल का यहाँ रंग बिखेरा। परमेश झा जी जो कि ग्रुप लीडर हैं, मैं ले आऊंगा। आप चलते आप लोग थोड़ा सा दूर हो जाओ ना, लाइन लगा लो, लाइन। जनकपुर से आए हुए हमारे इन कलाकारों का, जिन्होंने प्रस्तुति की सीता स्वयंवर से आरंभ करके भगवान श्री राम के भगवती जानकी के साथ विवाह के दृश्य का मंचन किया, और उस मंचन के पश्चात कोहबर के प्रसंग को ठीक उसी तरह से चित्रित किया जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति को जिस तरह से एक छोटी सी छोटी जो परंपराएं होती हैं उनको परिपूर्ण करते हुए लोकगीतों के माध्यम से मैथिली भाषा में यहाँ पर प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से आप सबको आनंद आया होगा। वो आनंद इसलिए आएगा क्योंकि आज तो आनंद की बात ही है। अयोध्या उल्लसित है, झूम रही है, मगन है, क्योंकि आज उनके आराध्य, उनके प्रभु
भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके प्रतीक रूप में एक बार पुनः आए हैं, उनका आगमन हुआ है और सजी संवरी अयोध्या आज गीत संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी श्रद्धा निवेदित कर रही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्री चरणों में। ये वो स्मृतियां हैं जो अयोध्या को बरबस इन्हें याद दिलाती रहेंगी। यद्यपि श्री अयोध्या और अवधपुरी के साथ साथ भगवान श्री राम इनके हृदय में, इनके मानस पटल पे सदैव सदैव के लिए अंकित हैं, क्योंकि हमारे हमारे इस मंच पर जैसा कि मैंने निवेदन किया कि चूंकि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ है, तो ये इतना ऊर्जित मंच है कि यहाँ पे आने के बाद जो कुछ भी महसूस हो रहा है वो आप तक अवश्य पहुंच रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्षण है, ये एक ऐसी घड़ी है जिसकी प्रतीक्षा हम सब करते रहते हैं प्रतिवर्ष। अयोध्या अपनी परंपराओं से सदैव जुड़ी रहती है। तालियां जरा जोर से लहरा दीजिए। हमारे इस मंच पर आपने सुना होगा कुमार विशु ने भजनों से आरंभ किया था हमारी इस संध्या को। तो कुमार विशु भजन का एक जाना पहचाना नाम, उनके साथी कलाकार मंच पर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्हें भी इस अवसर पर स्मृति चिन्ह प्रदान करके अंदर जाओ, अंदर जाओ। अरे सर चलिए, चलो हो गया, एक फोटो ले लो इनके साथ में। चलो सर के साथ, सर कुछ लोग इधर आ जाओ ना। चलो चलो दीपोत्सव 2023 अपनी पूरी भव्यता के साथ उस मोड़ पर पहुंचा, उस मुकाम पर पहुंचा जिसकी हमने की थी प्रत्याशा। 21 लाख दिए प्रज्वलित करके अपने ही विश्व कीर्तिमान को हमने और बेहतर बनाने का संकल्प लिया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में। और आज प्रभु श्री राम की कृपा से हमने अपने उस विश्व कीर्तिमान को और बेहतर किया है। 22,23,000 दिए प्रज्वलित करके हमने अपने विश्व कीर्तिमान को उन ऊंचाइयों पर रखा जिसकी हमने परिकल्पना की थी। ये सब हमारे राम जी की कृपा है। हमारे राम जी की कृपा हम पर, आप पर यूं ही बरसते रहे। बस यही एक कृपा है, यही एक आशा है, यही एक कामना है। आप सब जिस उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ जिस उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ आप यहाँ पर हैं, अयोध्या आप में है और आप अयोध्या में हैं।
इसी वजह से इस मंच की वो गरिमा बनती है, दीपोत्सव सफल होता है। और इस मंच पर नेपथ्य में रहने वाले हमारे वो लोग जिन्होंने अनथक मेहनत करके हमारे इस कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, गीत संगीत नृत्य के माध्यम से हमने 5 मंच बनाए थे और उनमें अनवरत कार्यक्रम किए थे। और उन्हीं कार्यक्रमों के दौरान हम सब ने, जिन लोगों ने नेपथ्य में रहकर कड़ी मेहनत की, जिसका प्रतिफल रहा कि दीपोत्सव 2023 के कार्यक्रमों को वो ऊंचाइयां मिली जिनकी परिकल्पना करके हमने इस पूरे आयोजन को किया था। तो